Hello students. So as we were discuss about the is matter around us pure and today very important topic we are going to discuss that is called colloids. So students colloids जो होते हैं इसकी जो प्रॉपर्टी होती है that lying in between solution and the suspension. हमने solution भी पढ़ा है और हमने suspension भी पढ़ा है. जो colloids हैं इनकी प्रॉपर्टीज जो होती है it is just in between the solution and the suspension. For instance, let's take the example of genetic. Means solution are homogeneous and the suspension are heterogeneous. So what is the in between property of the colloids? That is very important. So the importance of the colloids is this in case of this particular characteristics. Like they are seems to be homogeneous but actually they are heterogeneous. Means ये दिखने में क्या होंगे homogeneous. आप इसे देखकर हमेशा यही बात कहेंगे सर ये तो homogeneous है but actually they are not homogeneous, they are heterogeneous. So the property lying in between solution and the suspension, that's why we can say it. For example, बहुत ही अच्छा example है एक मेरे पास that is of milk. मिल्क को देखते ही हमारे माइंड में क्या चीज आती है मिल्क इज सीम्स टू बी होमोजीनियस. यस ये तो होमोजीनियस है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि देखने में हर चीज एकदम अच्छे से मिक्स है और उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं नॉर्मल फिजिकल मेथड से. बट वन थिंग व्हेन यू जस्ट पुट द मिल्क अनडिस्टर्ब्ड, जब आप उसे बिना किसी डिस्टर्बेंस के थोड़े समय के लिए रख देते हैं देन व्हाट इज हैपनिंग द क्रीम इज स्टार्टिंग सेपरेटिंग आउट फ्रॉम द मिल्क. क्रीम जो है वो उससे बाहर आने लगता है. मीन्स उसके पार्टिकल्स जो हैं उसको लीव करना शुरू कर देते हैं, उससे अलग होना स्टार्ट कर देते हैं. बट दैट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन. यानी कि सॉल्यूशंस की यानी कि होमोजीनियस जितने भी सॉल्यूशन होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी नहीं है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पर हमें से बहुत अच्छे से समझना है कि कॉलॉइड्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है. क्लियर? सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन अबाउट द कॉलॉइड्स. So here is the definition of the colloids. So let's discuss it. Colloids is a kind of solution in which the size. So now we are distinguish on the basis of their sizes. Size of the solute particle. जो solute particle के size हैं, that is intermediate between those of true solutions and the suspension. जिसके पार्टिकल्स का जो साइज होगा दैट इज इंटरमीडिएट होगा बिटवीन दी ट्रू सॉल्यूशन एंड दी सस्पेंशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इसका जो पार्टिकल साइज है दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर था एंड द साइज इज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर था. सो इसका साइज क्या होगा, इसका साइज लाई करेगा in between 1 nanometer to 100 nanometer. यहां पर आ जाएगा colloids का. ठीक है? So the range होगी that is the in between 1 nanometer to 100 nanometer. So the size lies in between. इसका साइज जो है इसके बीच में लाई करेगा. That is greater than 1 nanometer, that is 10 to the power -9 मीटर से ग्रेटर होगा और लेस होगा 10 to the power -7 मीटर से. सो लाइज इन बिटवीन. सॉरी. सो दैट इज द साइज ऑफ कॉलॉइड्स. इसका जो साइज होगा वो कॉलॉइड्स का इसके बीच में लाई करेगा. ठीक है? सो with the help of this we can just write the definition of the colloids. So colloids are those in which the size of the solute particles is lie in between the true solution and the suspension. Fine. So that is the definition of the colloids. So there are some very common example of the colloids like our blood. Blood is considered to be as colloids. Blood को colloid बोलते हैं. Blood के अंदर जितने भी particles are available, they are the size is lies in between this. तो उसका size जो है इसके बीच में ही lie करेगा. Because this is very important. We have to just distinguish all the things. यहाँ पर size less than 1 nanometer होगा solute का. So we will consider it solution. यहाँ पर साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर होगा तो दे विल कंसीडर एज द सस्पेंशन. यदि इसके बीच में लाई करेगा
so it will be considered as the colloids. So size is very important scenario जिसके ऊपर हम सभी को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो माइंड इट केयरफुली. तो ब्लड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स आर अवेलेबल, द साइज लाइज इन बिटवीन दिस, सो दैट्स व्हाई ब्लड इज कंसीडर्ड टू बी एज colloids. ब्लड को colloids बोलते हैं. द सेकंड वन इज, जो इसके साथ में सेकंड है, दैट इज द इंक. इंक के अंदर भी यही चीज होती है. द सेकंड वन इज, जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, मिल्क. So these are all are the good example of colloids. Soap solution we are talking about, जो घरों में soap use करते हैं, I'm talking about the solution. So soap solution is also the colloids. So सभी के सभी colloids हैं. These are the very good example. Definition lies करता है in between. तो let us discuss about the properties. अब हम properties की बात करते हैं. So definitely properties भी जो होंगी वो lie करेंगी in between solution and the suspension. So let us discuss one by one the properties of the colloids. So this is very important. The first property, that is the colloids, or we can say the colloidal solution, appear to be homogeneous. दिखने में ये क्या होंगे? Homogeneous. But actually it is heterogeneous. ये होंगे क्या? Heterogeneous होंगे. देखने में ये हमेशा ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छे से completely mixed है. So definitely it will be homogeneous. But no, they are not homogeneous. They are actually heterogeneous. So that is very important. So अगर in total हम देखें तो हमने definition के अंदर ये सिर्फ properties के अंदर हमें बताया जाता है कि जैसे ये seems to be homogeneous but actually they are heterogeneous. But actually end result क्या है? So end result is they are heterogeneous in nature. So हमें यही लिखना है, that is colloids are heterogeneous in nature. So don't write such kind of things. ये सिर्फ आपकी knowledge के लिए है. They seems to be homogeneous, but actually they are heterogeneous. But actually what is the end result? End result is they are heterogeneous in nature. Clear? So first property is very important. The second important property of the colloids is size. So as we have already discussed about the size of colloid is bigger than the dose of the true solution and is smaller than the suspension. इसका जो particle size है ये lie करेगा in between 1 nanometer to 100 nanometer. ये इसके बीच में ही lie करेगा, lie like this. So यदि ये कोई भी colloidal particles है, magnifying करके यदि हमें देखना है तो इसका जो diameter होगा, the diameter lie in between 1 nanometer to 100 nanometer. So ये इसके बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा. So यदि हम इसको खोल के लिखना चाहे तो that will be 10⁻⁹ से मीटर से that will be 10⁻⁷ मीटर के बीच में रहेगा इसका पार्टिकल साइज डायामीटर का. याद रखें, ऑफ डायामीटर. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें इसको साइज के बेसिस पर ही डिस्टिंग्विश करना है. सो साइज के बेसिस पर हम इसे यही बता सकते हैं कि साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से तो हमेशा बड़ा ही रहेगा एंड द लेसर देन दी 100 नैनोमीटर यानी कि 10⁻⁷ मीटर. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और यदि हमने डेफिनेशन की भी बात की है colloids की तो हमने इसी पर ही बात की है. तो डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बिकॉज ऑफ द साइज हम हर चीज को डिस्टिंग्विश करते हैं. दैट इज इन द सॉल्यूशन, colloids एंड द सस्पेंशन. तो साइज वेरी करेगा तो हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसके अकॉर्डिंगली भी वेरी कर जाएंगी. क्लियर? सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So the next important property of the colloids is the particles of the most of the colloids cannot be, याद रखिए, नहीं देखे जा सकते, cannot be seen even with the microscope because mostly यहाँ पर word use किया गया है mostly, most of the colloids particles. colloid particle जितने भी बनते हैं as we have already discussed there is a range that is 1 nanometer to 100 nanometer. So इस रेंज के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम यदि वो 1 नैनोमीटर के पास होंगे सो इवन दो ये माइक्रोस्कोप से तब भी देखे नहीं जा सकते हैं बिकॉज वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ गुड माइक्रोस्कोप इन द लेबोरेटरी. मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल माइक्रोस्कोप कि वो उससे नहीं देखे जाएंगे. ठीक है. सो यस, इफ यू आर यूजिंग द हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या अगर हम इनकी सहायता लें तो मे बी वी कैन सी थ्रू. बट यूजली जो जनरल माइक्रोस्कोप्स हैं हम उसकी हेल्प से इसको नहीं देख सकते हैं. सो दैट इज
द प्रॉपर्टी विच इज जस्ट एसोसिएटेड विद द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के साथ ही एसोसिएटेड है। द सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को भी हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। सेम वे में यहाँ पर कोलॉइड्स के पार्टिकल को भी हम माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। एंड द अदर प्रॉपर्टीज आल्सो एसोसिएटेड विद द सॉल्यूशन, लाइक द पार्टिकल्स ऑफ द कोलॉइड्स कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। इसके पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से बहुत इजीली पास हो जाते हैं, बिकॉज इनका पोर साइज जो फिल्टर पेपर का होता है वो भी इतना बड़ा नहीं होता कि इसके पार्टिकल्स को भी स्टॉप कर ले। सो इवन दो वी कैन से दैट दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं हो सकते। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये फिल्ट्रेशन से, जैसे मिल्क को भी हम यदि छन्नी से साफ करते हैं यानी कि पास करते हैं, तो हम देखते हैं कि उसके पार्टिकल्स वहां से सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखनी है कि सभी के सभी कोलॉइड्स पार्टिकल एक जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। कारण है बिकॉज देयर इज अ रेंज, पार्टिकल्स की रेंज है। हम बात कर रहे हैं मोस्टली कोलॉइड्स की। ठीक है, मोस्टली कोलॉइड्स आर डूइंग लाइक दैट। तो मोस्टली कोलॉइड्स है, तो ध्यान रखना इस चीज का। जैसे जैसे साइज का वेरिएशन होगा तो हो सकता है कि कुछ एक ऐसे कोलॉइड्स फॉर्मेशन हो जाए जिसके अंदर वो ये प्रॉपर्टी शायद शो ना करें। तो ध्यान रखना है, देयर इज अ रेंज, दैट्स व्हाई दे कैन वेरी इन देयर प्रॉपर्टी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरली they are showing these kind of properties. So the next important property of colloids is scattering of light. जो colloids हैं they scatter the light, ये light को scatter कर देंगे for the same way जैसे कि हमने already discuss किया। So this is the colloidal solution। जैसे ही हम light इसमें से pass करते हैं then what is happen, ये light को यहाँ से cross नहीं करने देगा, ये इसी के बीच में ही स्कैटर हो जाएगी। द लाइट इज स्कैटर। और इसके बेस पर हम ऑलरेडी एक एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। मींस इट शो द टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। इसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है दैट इट जस्ट स्कैटर द लाइट। इस लाइट को इट कैन जस्ट स्कैटर द लाइट, लाइट को स्कैटर कर सकता है। सो अ कोलॉइड स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट या बीम पासिंग थ्रू इट। इसके अंदर से जो भी बीम पास होगी उसको ये क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। सो मींस वी कैन से दैट इट शो द टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द कोलॉइड्स। क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, जैसा कि हमने सॉल्यूशन के केस में भी किया था। नाउ वी आर डूइंग द सेम थिंग। तो फॉर सॉल्यूशन we did about solute and solvent will give rise to the solution। ये हमारा वहां पर सॉल्यूशन के केसेस के अंदर हमने इसकी फिजिकल स्टेट्स को डिफाइन किया था। नाउ दिस विल इन केस ऑफ कोलॉइड्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द डिस्पर्जन फेज। इसको क्या बोल देते हैं हम, डिस्पर्जन फेज। सोल्यूट यानी कि जो लेस क्वांटिटी में यूज हो रहा होता है दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्जन फेज। जिसमें डिसॉल्व करते हैं दैट इज कॉल्ड द डिस्पर्जन मीडियम। सो इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम। सो दैट इज द मीडियम। डिस्पर्जन फेज इज डिसॉल्व इन द डिस्पर्जन मीडियम एंड फॉर्म कोलॉइड्स। किस चीज की फॉर्मेशन करता है ये, कोलॉइड्स की फॉर्मेशन करता है। एंड हियर वी विल डू सम एग्जांपल्स। यहाँ पर हम इसके कुछ ना कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन इन द सेम पैटर्न, जैसे कि हमने उसके अंदर किया था, हम उसी पैटर्न के अंदर यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो नंबर वन इज, so यहाँ पर हो गया, इसको तीन फेज में डिवाइड कर देते हैं, दैट सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सेम में यहाँ पर भी इसको सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहाँ पर भी इसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, और यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड gases. So for this reason we can say that colloids can also have 9 types. So let's discuss one by one. इसके भी 9 types हैं या कम हैं. Let us discuss. So first of all, when solid dissolving solid, solid dissolving solid, so it will form the solid sol. इसको क्या बोलते हैं, solid सोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड डिसॉल्विंग सॉलिड विल फॉर्म सॉलिड सोल। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड डिसॉल्विंग सॉलिड है, सॉलिड सोल बना। सो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, इसको बोलते हैं हम
कॉलॉइड इज दिस, एग्जांपल है जेमस्टोन। जेमस्टोन होता है जो ये पंडित लोग देते हैं मुंदरी वगैरह डालने के लिए, से दिस इज पुखराज है या पन्ना है, वट एवर इट इज। सो उस तरीके के जो स्टोन्स होते हैं दे आर कंसिडर टू बी एज जेमस्टोन, ठीक है, जो आई मीन ऑर्नामेंट्स बनाने के भी काम आते हैं। सो दीज आर कंसिडर टू बी एज जेमस्टोन। जो जेमस्टोन होता है सॉलिड डिसॉल्व इन सॉलिड होता है, सॉलिड ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और सॉलिड के अंदर ही डिसॉल्व होता है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर टू बी एज कॉलॉइड्स। कोई अच्छा सा उसके अंदर होमोजेनियस मिक्सचर नहीं होता, देखने में लगता है कि पूरा का पूरा अच्छे से मिक्स है, बट एक्चुअली नहीं होता। सो उसको हम स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड सोल। याद रखना है ये इस चीज के अंदर। हम आगे भी बार बार इसको यूज करेंगे। सो दैट इज नेक्स्ट इज लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड। सो लिक्विड इज इन द लेस क्वांटिटी एंड सॉलिड इज इन द लार्ज क्वांटिटी। सो लिक्विड और सॉलिड ये कम क्वांटिटी में है और ये ज्यादा क्वांटिटी में, इसको बोलते हैं जेल। सो दीज आर द जेल, जितने भी जेल होते हैं जेल कॉलॉइड्स होते हैं। सो लिक्विड कम अमाउंट में है एंड सॉलिड लार्ज अमाउंट में जेल। तो जेली अगर आपने देखी हो जो बच्चे यूज करते हैं दैट जेली, सो जेली के अंदर भी यही चीज होती है, दैट इज लिक्विड इज इन द वेरी लेस क्वांटिटी एंड द सॉलिड इज इन द लार्ज क्वांटिटी। और वी कैन से चीज इज आल्सो द गुड एग्जांपल ऑफ इट, दैट इज कॉल्ड जेल। चीज भी जेल होता है, ठीक है। नाउ गैस इन सॉलिड, so गैस इन सॉलिड, गैस कम अमाउंट में है और सॉलिड लार्ज फॉर्म, इसे हम सॉलिड फॉर्म बोलते हैं, दैट इज सॉलिड फॉर्म इन विच द गैस इज इन द लेसर अमाउंट एंड सॉलिड इज इन द लार्ज अमाउंट, दैट इज डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड। सो द बेस्ट एग्जांपल इज स्पंज होती है, जैसे स्पंज है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट, ठीक है। प्यूमिस स्टोन भी हो सकता है इसका एग्जांपल। द नेक्स्ट इज एक सॉलिड वाले पार्ट के, सॉलिड मीडियम के, डिस्पर्सन मीडियम के हमारे तीनों पार्ट कवर हो गए। सो देयर आर 3 टाइप्स, solid sol, gel and solid form. Clear? So next is solid dissolve in liquid. Solid is in the less quantity and liquid is in the large quantity. That is called the sol. इसे हम क्या बोलते हैं? सोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर क्लासेस के अंदर इसको बहुत ही ज्यादा एक्सैजरेट किया हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका नाम याद रखना है, दैट इज कॉल्ड दी सोल। इसको सोल बोलते हैं, सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड। सो द बेस्ट एग्जांपल इज इसका जो स्टार्च इन वाटर। व्हाई स्टार्च इन वाटर? बिकॉज द साइज ऑफ द स्टार्च इज lies in between 1 nanometer to 100 nanometer. And the next is liquid dissolve in liquid, that is called emulsion. इसे हम इमल्शन बोलते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज इमल्शन का जैसे बेस्ट एग्जांपल होता है ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, ठीक है। ये ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, ये इमल्शन के एग्जांपल्स हैं। मतलब हम इस तरीके से इमल्शन को बना सकते हैं। सो पेंट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इट। ट्रैक्टर इमल्शन हमने सुना होगा, दैट इज अ गुड एग्जांपल जो हम यूज भी करते हैं, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। तो ये क्या बनेगा? इमल्शन। गैस इन लिक्विड, that is called the gas is in less quantity and liquid is in the large quantity. इसको बोलते हैं फॉर्म के लिए we will use shaving foam। क्या आ जाएगा यहाँ पे? shaving foam, ठीक है। so ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं अभी तक, ठीक है। गैस इट इज कॉल्ड एरोसोल, इसे हम क्या बोलते हैं? एरोसोल बोलते हैं। so the example is dust in air, ठीक है। डस्ट यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो लेस अमाउंट में होंगे, गैस इज इन द लार्ज क्वांटिटी। नाउ लिक्विड डिसॉल्विंग गैस, दिस इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी एज एरोसोल। इसको भी क्या बोलते हैं हम? एरोसोल बोलते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एरोसोल। इसके लिए हम बोल सकते हैं दैट इज फॉग या क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड को भी यही चीज कहेंगे, दैट इज clouds are also good example of this liquid in gas. So yeah, both are the good example of it. Now gas dissolve in gas, they never form colloids. ये हमेशा homogeneous mixture की formation करते हैं, यानी कि they are always considered to be as solution, ये solution की formation करते हैं, ठीक है। Now see what is happening, अब हमें ये चीजों को देखना है।
So this is one type, first type, this is second type, this is third type, this is fourth type, this is fifth type, and this is sixth type, and this is seventh type. These both are aerosol. तो ये सारी की दोनों चीजें किस में कंसिडर होंगी? सेवंथ टाइप में कंसिडर होंगी. तो 7 ये है ही नहीं. तो टोटल कितने टाइप्स हो गए? 7 टाइप्स हो गए. लेट्स डू इट अगेन. इसको फिर से एक बार करते हैं सारी की सारी चीज को. वी हैव सॉलिड डिसॉल्विंग सॉलिड, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सोल, सिंपल है. लिक्विड डिसॉल्विंग सॉलिड, दैट इज कॉल्ड जेल, जेली या चीज, इसका बेस्ट एग्जांपल है. गैस डिसॉल्विंग सॉलिड, दैट इज कॉल्ड सॉलिड फॉर्म. ठीक है. उसके बाद सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड, दैट इज सोल. सॉलिड डिसॉल्विंग लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सोल. लिक्विड डिसॉल्विंग लिक्विड, दैट इज कॉल्ड इमल्शन, पेंट्स इसका बेस्ट एग्जांपल है. गैस डिसॉल्विंग लिक्विड, दैट इज कॉल्ड फोम, शेविंग फोम विद द बेस्ट एग्जांपल. सॉलिड हो या लिक्विड हो, जब दोनों के दोनों ही गैस में डिसॉल्व हो रहे हैं, बोथ आर कंसीडर्ड टू बी एज एरोसोल्स. हाँ, एग्जांपल्स इनके अलग अलग हैं, वो आपको अलग से करने हैं. एंड द गैस डिसॉल्विंग गैस, ये कभी भी कोलॉइड सॉल्यूशन नहीं बनाते. दे ऑलवेज फॉर्म द होमोजेनियस मिक्सचर, यानी कि वो हमेशा सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करें. सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, अच्छे से करना है इसके बारे में. ठीक, ध्यान रखिए.